Hi everyone, hello. I hope you're doing good. Let me adjust my mic and I'm gonna be there in a minute. Just hold on. I'm sorry for the mic disturbance. I'm really sorry for the mic disturbance. And here we will get started with our type theories of personality. In the last video we discussed about trait theories of personality. Trait theories को हमने discuss किया था जिसमें हम traits देखते हैं. Type theories of personality में two important theories है and in type theory we look at the types of personality. Now Hippocrates. Now you know Hippocrates. Everyone knows Hippocrates. सबको हिपोक्रेट्स के बारे में पता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था. ठीक है. Hippocrates, a Greek philosopher था, who contributed to psychology a lot. He was a good contributor in this field, in psychology. And if you do not know the symbol of psychology, this is the symbol of psychology, right? It is not a lotus. It is not a symbol of BJP, right? It is the symbol of psychology. It is a symbol of psychology. Now, in type theories, we have two kinds of theories that we will discuss. We have two kinds of theories that we will discuss. Shall we start? Okay, we should start. And here you have to put your full focus because again this is going to be a long and lengthy video where we will discuss about a lot of important things. Choleric, melancholic, sanguine and phlegmatic. Okay. Now, basically, Hippocrates said कि ये 4 humors के हिसाब से you have a personality based on these 5 humors. What are the 5 humors that he gave? Right? Fluids basically इन्होंने दिए थे 5. वो क्या थे? Choleric, melancholic, sanguine and phlegmatic. Now इन्होंने बोला कि इन्हीं के बेस पे आपकी personality होती है. So choleric is yellow bile. इट इज़ येलो बाइल. और जिनकी ये कॉलरिक होता है, जिनकी येलो बाइल होते हैं, कॉलरिक का मतलब उनकी क्या होती है, येलो बाइल होता है. जिनकी बॉडी में ज़्यादा एक्सेस येलो बाइल फ्लूइड होता है वो ह्यूमन में से फर्स्ट है कॉलरिक. एक्सेस येलो बाइल अगर फ्लूइड होता है येलो बाइल तो आपकी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, irritable. You are not happy with the world. You are always irritated, just like me sometimes. So yes, you have yellow bile, excess of yellow bile. If I talk about melancholic, melancholic में he said you have excess of black bile. Black bile ka when you have excess. You do not have to understand everything in a detailed manner. If it comes in multiple choice questions or multiple statement questions or match the following, maybe assertion reason, बहुत तरीके के questions होते हैं. उसमें से ट्रू फॉल्स नहीं आता. ठीक है, ट्रू फॉल्स नहीं आता. स्टेटमेंट करेक्ट है रॉन्ग है उसके बारे में आता है. तो उस पर इट कैन बी important. Less than 13 days you have, so be serious. Now black bile is when you are depressed. Melancholic is depressed. ये तो ईजी हो गया आपको. उसके बाद सैंग्विन में आपका होता है ब्लड, एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लूइड. देन यू हैव ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी एंड फ्लिग्मैटिक में यू हैव काम पर्सनैलिटी. एंड फ्लिग्मैटिक में कौन सा फ्लूइड होता है, फ्लीगम. एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो कॉलरिक, मेलनकॉलिक, सैंग्विन एंड इनकी आप बस याद रख लो कि क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस तरीके की पर्सनैलिटी इनकी होती है. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू नोट डाउन. नाउ वी विल टॉक अबाउट शेल्डन somatotype personality. Sheldon somatotype personality. Somatotype personality. Now what is somatotype? Somatotype की बॉडी जैसी आपकी है उसी के बेस पे आपकी पर्सनैलिटी होती है. यू हैव अ बॉडी, अ काइंड ऑफ बॉडी, अ शेप जिसकी वजह से यू हैव अ पर्सनैलिटी. ठीक है, उसकी वजह से आपकी वैसे पर्सनैलिटी होती है. अकॉर्डिंग टू ए बॉडी टाइप यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. ओके, इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ ही सेड दैट यू हैव एक्टो. फर्स्ट एक्टो होती है, पहले नहीं, फर्स्ट आपके एंडो होती है. ठीक है, एंडोमॉर्फ. So first you have endomorph kind of personality which is round and soft. So some people who have round and soft body, not very muscular, not very athletic, round and soft. This is your endo. तो आपका endo ऐसे होगा. Cute, chubby. So chubby, round and soft. So this kind of personality you have. ठीक है, राउंड एंड सॉफ्ट जैसी आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि आप एंडोमॉर्फ हो. आपकी पर्सनैलिटी चबी है, आप मस्कुलर नहीं हो, एथलेटिक नहीं हो, ब्राउन हो, सॉफ्ट हो. एंड दैट इज वाई यू हैव व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, रिलैक्स पर्सनैलिटी. चबी, राउंड, सॉफ्ट, इट मीन्स पीपल हु हैव एंडोमॉर्फ काइंड ऑफ बॉडी. एंडोमॉर्फ जैसी उनकी अगर बॉडी होती है तो वो बहुत सोशेबल होते हैं,
बहुत काइंड होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं. No, I do not believe this. I think people who are maybe athletic, maybe muscular, they are also very kind. They are also very comfortable and sociable. I do not believe in this theory, and it doesn't mean कि वो round and soft है तो उसका मतलब वो sociable ही होगा, वो cute ही होगा, वो sexy नहीं लग सकता. I think this is absolutely wrong, and I do not believe in this. I mean, it was maybe according to his theory, maybe he has met people like these जिनके endo थी तो वो round and soft थे, वो sociable kind थे, but you cannot generalize this. So this is my limitation. This is how I criticize this. Right? ऐसा ज़रूरी नहीं है. Generalize कर दिया कि सारे ही round and soft जो endomorph होते हैं वैसे ही होते हैं. ठीक है. Now we have mesomorph. Now mesomorph are, can you please tell me mesomorph से आपको क्या आ रहा है mind में? What do you think? What kind of people are mesomorph? Mesomorphs are lean and muscular. They are lean and muscular. Muscular and strong. So ये जो muscular strong होते हैं ना, इनकी personality क्या होती है? इनकी personality कैसे होती है? ये बहुत ना active होते हैं, ये बहुत assertive और straight forward होते हैं. तो ये बहुत upfront होते हैं, ये बहुत active होते हैं, and ये बहुत assertive होते हैं. ठीक है. Again, this is not true. This is not true. It doesn't mean कि if a person is a mesomorph and is muscular and has a lot of muscles and goes to the gym daily, बहुत सारी muscles है उसकी, तो वो हमेशा active और assertive. Active हो सकता है, of course he has muscles, तो workout तो करता होगा, but it doesn't mean कि वो upfront assertive होगा. It doesn't mean कि वो हमेशा ऐसे ही होगा. Maybe endomorph भी gym जाता हो, but उसकी muscles ना हो. तो health सिर्फ muscle से नहीं बनती जो आपको दिखती है. Especially as a woman, you should not focus on building muscles. You should focus on building strength. Building strength is important. And that's why I really oppose this theory, because I think if someone has muscles, it doesn't mean that the person is healthy. Of course, the person goes to the gym daily, but health is not based on how you look. Health is based on how you feel. And that is why I completely oppose this theory. So, इधर इन्होंने बोला कि mesomorph is muscular, strong, upfront, active and very assertive. ना ectomorph भी था जिसको मैंने पहले लिखा. पहले आपका, अगर आपको सीरीज में याद करना आपको इजी हो जाएगा तो आप ESE करके याद कर सकते हो. इससे आपको याद रहेगा ESE. Endo, sorry, EME, endo, meso and ecto. So EME से अगर आप याद रखोगे तो आपको इजी हो जाएगा. ठीक है. अगर आपको वैसे याद रखना है, नॉर्मल आपको ऐसे रैंडम सीरीज में याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखना है, तो आप कैसे भी याद कर सकते हो. बट अगर आपको सीक्वेंस में याद करने के पहले एंडो आएगा, फिर मेसो आएगा, फिर एक्टो आएगा, तो EME करके आप उसको याद कर सकते हो ना. एक्टोमॉर्फ क्या होता है? एक्टोमॉर्फ आर पीपल ऑफ वेरी लीन. ये बहुत लीन होते हैं, ये बहुत पेटीट होते हैं. ठीक है. एंड इनकी पर्सनालिटी क्या होती है? बहुत सेंसिटिव होते हैं. अगैन वेरी वेरी वियर्ड स्टेटमेंट. ज़रूरी नहीं है कि वो सेंसिटिव हैं जस्ट बिकॉज वो लगते पतले से हैं, तो इट डजंट मीन दैट. डेलिकेट होते हैं, पुअर मसल्स होती हैं, नॉन असर्टिव होते हैं, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता बेसिकली, एंड दैट इज़ वेरी रूड. आई पर्सनली थिंक दैट इज़ वेरी रूड. नाउ दिस इज़ योर टाइप थ्योरीज विच आर इंपॉर्टेंट. दीज आर 2 टाइप थ्योरीज विच आर इंपॉर्टेंट. Okay, these are 2 type theories which are extremely important. Shall we move to the next topic? Shall we move to the chapter biopsychology, human development? पहले हम human development पढ़ लेते हैं because biopsychology is a little complex, so we will just move to human development. I hope you have understood psychological testing will be there, but right now, जो भी I'm studying, whatever I'm teaching you, all you have to do is just listen to me, whatever I'm teaching you. ठीक है. अभी we will not start biopsychology because it's too complex. We will start आपका life development, human development. ठीक है. वो हम start करते हैं. बायोसाइकोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो we will not start it right now. ठीक है. अभी कुछ फन सा पढ़ते हैं, स्टेजेस याद कर लेते हैं, क्योंकि स्टेजेस आपकी मैच द फॉलोइंग में आती हैं. कौन सी स्टेज नहीं है वो भी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको 3-4 स्टेजेस दिए होंगे. बोला जाएगा कि एरिक एरिक्सन जो अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में एरिक एरिक्सन जो है उसकी कौन सी स्टेज नहीं है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे. आपने पढ़ा नहीं होगा, आपको लगेगा सारी ही हैं. ठीक है. तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे. ठीक है. इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको अच्छे से स्टेजेस पढ़नी है और आपको फिर आना चाहिए, उसके क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने आने चाहिए. दैट इज़ वाई ऑन आई थिंक Tuesday or Wednesday, I'm not sure, I'll let you know, but maybe on Tuesday, maybe on Monday, I will
come up with MCQ series. I will talk about 50 MCQs from previous year question papers. I will bring 50 MCQs, and that is why you will attempt it with me. Pause the video, question will be there. Pause the video and let me know your answer. If it is correct, then give yourself 4 marks. If it is incorrect, then -1, and that's how you will be able to study for your exams. If it is correct, +4, and if it is not incorrect, then -1. And that is how you will be getting good marks, and getting into your dream college is really difficult but not impossible. Okay, so let's talk about life development, human development. Okay, let's talk about it. Should we? I think we should, right? It is very, very important. Now here we will talk about Jean Piaget की stages of cognitive development. Jean Piaget की stages of cognitive development. We will talk about Jean Piaget की stages of cognitive development. सीरीज जो आएगी MCQ में, उसमें सारे प्रीवियस ईयर MCQs होंगे 50, और आपके 10 MCQs मैं रखूँगी जो मैंने खुद बनाए होंगे फ्रॉम माई बुक. आई हैव अ बुक फ्रॉम Cicerelli, फ्रॉम Barron. I will make 10 more questions, so total there will be 50 questions. There will be 50 questions from a previous year question paper, and 10 questions that I will make for you from the books. So that is why you will have to mark it accordingly, +4 right, -1 incorrect. And that is why I think you should watch that video, because it's going to be fun and you will test your knowledge. So 60 questions में से how many questions you got right? And pause the video and answer me, and I'll tell you the answers maybe in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऑन माई कॉमेंट. उस पर मैं आपको आंसर्स बताऊंगी. मैं आपको वीडियो में आंसर्स नहीं बताऊंगी. आई जस्ट एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज अगर मैंने साथ में आंसर बता दिया, यू विल चेक द आंसर एंड आई डोंट वांट दैट. नाउ जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस बताई थी. नाउ जीन पियाजे बेसिकली सेड दैट व्हेन यू आर कॉग्निटिवली डेवलपिंग, व्हेन यू हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, you have few stages that we have to talk about. Total, how many stages are there? This question can come to your exam and you can just confidently say that there are 4 stages. First stage is sensory motor. First stage is sensory motor from 0 to 2. 0 से 2 से 0 ईयर से 2 से आप इन्फेंट हो जब आपकी, तो 0 से 2 आपकी सेंसरी मोटर होती है, राइट? दिस इज योर फर्स्ट स्टेज. The second stage is pre-operational from 2 to 7. What is the next stage? The stage third. I think I'll have to erase this. I'm really sorry. Okay, now stage third. Okay, sorry for my handwriting. Concrete operational from 7 to 11. And your formal operation, which is the last one, formal operational. I'm not writing operational, ठीक है? ये तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए. It will be evident to you कि operationally है सबके आगे. बस सेंसरी मोटर में नहीं है, बाकी प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन के आगे ऑपरेशन है, ठीक है? 12 से 15. Now, if you make tables like this and study it like this, it's gonna be fun for you. Okay, now shall we move to the first one, which is sensory motor. You are in the sensory motor stage, right? अगर आप sensory motor stage में हो, तो आप baby हो, you are an infant, okay? And when you are in the pre-operational, आप एक child हो, ठीक है? Concrete में आप अभी एक बड़े तो हो, बट टीनेजर में नहीं बने हो. अभी आप एक टीनेजर नहीं बने हो, एडोलेसेंट नहीं हुए हो इन कॉन्क्रीट. एडोलेसेंट टीनेजर कब हुए हो? फॉर्मल में. सो ये आपकी स्टेजेस होती है. इधर आप टॉडलर बोल सकते हो, फिर बड़े बड़े हो गए, फिर आप इधर बोल सकते हो कि जो आपका चाइल्ड हो, बड़े हो थोड़े, फिर इसमें आप टीनेजर हो. दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड. एंड सेंसरी मतलब आप धीरे धीरे बच्चे हो, या आप धीरे धीरे आपकी सेंसेस डेवलप हो रही है. बेबी हो या अभी वर्ल्ड में आए हो, तो आपकी धीरे धीरे सेंसेस डेवलप हो रही है, तो आप सेंसरी मोटर को सेंसेस से याद रख सकते हो, ठीक है? नाउ
और प्री ऑपरेशन का ऐसा रख सकते हो कि इस स्टेज में हम धीरे धीरे ऑपरेशन करना सीखते हैं, बट अभी प्रॉपर ऑपरेशन अभी साथ नहीं हुआ होता है, इसलिए इसे प्री ऑपरेशन कहते हैं 2 to 7। कंक्रीट को ऐसा रख सकते हो कि आपके धीरे धीरे लॉजिकल रीजंस बनते हैं, आप धीरे धीरे वर्ल्ड के बारे में सीखते हो, तो आपकी कंक्रीट बन चुकी है। दैट्स हाउ आई रिमेंबर। एंड फॉर्मल में बिल्कुल फॉर्मल हो चुके हो, बिल्कुल आप फॉर्मल हो चुके हो, मतलब आप बिल्कुल बड़े हो चुके हो, एंड नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। दैट इज़ अ फॉर्मल। That's how I remember. Now sensory period is when you have motor skills. Now आपकी इधर ही senses, मैंने बोला था ना याद कैसे कर सकते हो, senses आपकी इधर senses जो है वो increase होती है, not just the normal senses but also motor skills. So इधर आपको क्या होता है, increase in motor skills and enhance senses। मैं इधर सिर्फ senses ही लिख रही हूँ, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया, आप सेंसरी मोटर में हो, ठीक है। इधर आप लैंग्वेज और इमिटेट भी करना सीखते हो, आप इमिटेट करना सीखते हो और आप लैंग्वेज सीखते हो। इमिटेट मतलब अपने पेरेंट्स को, आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप कॉपी करते हो, तो आप इमिटेट करना सीखते हो। एंड यू लर्न लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होती है इसमें एक लिमिटेशन होती है कि थिंकिंग इज लिमिटेड टू द सेंसिबल हेयर एंड नाउ। मतलब आपको ना इसमें थिंकिंग अच्छे से डेवलप नहीं होती। आपको पता होता है दैट यू आर अ बेबी, यू आर इमिटेटिंग अदर्स, यू आर लर्निंग योर नेटिव लैंग्वेज, योर मदर टंग, यू आर लर्निंग मोटर स्किल्स एंड योर सेंसेस आर इंक्रीजिंग, बट योर थिंकिंग स्किल्स आर लिमिटेड। योर थिंकिंग स्किल्स आर वेरी लिमिटेड हियर इन दिस स्टेज, इन द सेंसरी मोटर स्टेज, एंड दैट इज अ लिमिटेशन। Okay. So that is your sensory motor. Now here in sensory motor, you have object permanence also. Object permanence. Now there are stages of object permanence that we will talk about after this topic. After understanding these 4 stages, we will come to object permanence. अभी we will not come to object permanence, right? अभी हम सिर्फ stages नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ object permanence के थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो here you have a pen and you are in the sensory motor 0 to 2, so you are just a baby and 0 से 2 years तक you're just a baby। तो आपको पता है कि ये पेन इधर है, बट अगर मैं पेन हटा दूँ तो आपको पता नहीं लगेगा कि पेन है कि नहीं, आपको लगेगा वो पेन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगैन, and I'm removing it in front of your eyes. Again, I'm putting it here. Again, I'm removing it from the front of your eyes. Right? I'm showing you, I'm removing you. ठीक है, removing the pen. I'm showing it and I'm removing the pen. Which means that आपको लगेगा कि कोई चीज़ अगर आपके सामने है तो वो तभी exist करती है. If the thing is not in front of you, it does not exist. If it is not in front of you, it does not exist. It does not exist. That is why. तो sensory motor में you start developing object permanence. You start knowing कि हाँ, अगर कोई चीज़ सामने है नहीं, अगर मेरा favorite toy मेरे सामने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो exist नहीं करता. It just means that वो भी कहीं और पड़ा हुआ है, घर के किसी corner में होगा, but it doesn't mean कि वो है ही नहीं या वो disappear हो गया. And इसी एज में in the sensory motor you learn the idea, learn the concept of object permanence. That object exists even if it is not in front of my eyes. Okay. Now there are stages also. object permanence की stages होती है जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. Maybe in the end of this video, maybe after this, we're not sure. Let's come to the stage 2, which is pre-operational. Pre-operational में आपकी होती हैं बहुत important concepts, because here you are not a baby anymore. You are 2 to 7, so you are pretty big. You are a grown baby. You are a grown baby. तो आप एक ग्रोन बेबी होते हो, ठीक है। तो इन प्री ऑपरेशनल यू हैव ईगो सेंट्रिक, यू हैव ईगोसेंट्रिज्म. ईगोसेंट्रिक क्या होता है? जब चाइल्ड को सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव, अपनी ही लाइकिंग, अपनी ही डिसलाइकिंग दिखती है. आई ओनली केयर अबाउट माई लाइकिंग, आई ओनली केयर अबाउट माई डिसलाइकिंग इन 2 to 7 प्री ऑपरेशनल. तो यू कैन से वर्ड्स, you can imagine things. You cannot think logically here in this pre-operation. You cannot think logically. And इधर ही आपका egocentric होता है. मतलब you can see your thing. You are as a child in pre-operational 2 to 7 is only aware about him or herself. Okay? तो आप खुद ही के बारे में अवेयर हो, आप खुद ही की नीड्स और डिज़ायर्स के बारे में जानते हो, आप दूसरों की नीड्स और डिज़ायर्स को नहीं देखते हो.
ठीक है। एंड हियर यू लर्न सिम्बल्स, दैट बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, उनका क्या मीनिंग है, राइट। यू लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिम्बल्स, सिम्बल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो आप सीखते हो, सिम्बल्स के बारे में आप स्टडी करते हो। लॉजिकल, यू डू नॉट थिंक इन दिस स्टेज, यू डू नॉट थिंक लॉजिकल, ठीक है। यू डू नॉट थिंक लॉजिकल, यू कैन नॉट थिंक लॉजिकल, इधर आप लॉजिकल सोच ही नहीं सकते, यू डू नॉट हैव लॉजिकल थिंकिंग, ओके। You start making meaning of images here in this stage, gestures and words to describe people, ठीक है। जैसा आपने सुना होगा कि इस स्टेज पे बच्चे बोलते हैं कि मैं सुपरमैन हूँ, मेरे पापा सुपरमैन है, वो इसी रीज़न से होता है, ठीक है। दैट इज़ इन द प्री ऑपरेशन, बिकॉज दे स्टार्ट गिविंग मीनिंग थ्रू इमेजेस, थ्रू वर्ड्स, जो कार्टून्स वो देखते हैं, ठीक है। इधर आप स्टोरीज बनाते हो बेसिकली, दैट माई पापा इज अ सुपरमैन, ही इज गोना सेव द वर्ल्ड एंड सो क्यूट, बट इट इज इन प्री ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इज वेरी बिग एंड यू आर नॉट अ ग्रोन बेबी, यू आर अ प्रॉपर ग्रोन ह्यूमन बींग नाउ, ठीक है। एंड यू कैन डू मैथ्स, you can do maths and everyone just ask you table कि इसका टेबल सुनाओ, उसका टेबल सुनाओ, that is so bad. You understand cause कि अगर मैं कुछ करूँगा तो उसका effect क्या होगा, ठीक है। If I'm gonna do something, उसकी punishment मिलेगी या उसका reward मिलेगा, and then you stop doing it. If it is causing you something harmful, if it is giving you a punishment, you will not do it because you are in concrete operational. So concrete operational होते हो, ठीक है। आप इसमें सिस्टमैटिक वेज देखते हो चीज़ों को सॉल्व करने का, एंड यू कांट अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। इधर आपका ईगोसेंट्रिज्म खत्म हो जाता है, बिकॉज आप लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग देखना शुरू कर देते हो एट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो ईगोसेंट्रिज्म खत्म हो जाता है इस स्टेज में, ओके। एक और चीज़ डेवलप होती है विच इज़ कंजर्वेशन। मतलब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कंजर्वेशन, व्हाट इज कंजर्वेशन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कंजर्वेशन? द अमाउंट ऑफ वेट, area, mass, height stays the same even when the outward appearance of a group or object is changed, ठीक है। अगर मैं इधर कॉटन रखूँ 1 kg कॉटन, ठीक है, 1 kg कॉटन रखूँ और 1 kg स्टोन्स रखूँ, एंड मैं उस बच्चे से पूछ रही हूँ जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में है कि कौन सा हैवी होगा, द किड विल से दैट 1 kg कॉटन एंड 1 kg स्टोन will be the same. The weight of both these items will be the same, ठीक है। दोनों आइटम्स का वेट जो है वो सेम रहेगा, एंड कौन सा हैवी होगा, दोनों ही हैवी होंगे, बिकॉज दोनों का वेट 1 kg है, सो दोनों ही इक्वली हैवी होंगे, क्योंकि एक ही वेट है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हैवी, अगर वो हैवी होगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा, बट इधर तो दोनों का वेट सेम है, तो जब वेट सेम है तो हैवी भी तो दोनों इक्वली होंगे। इसी स्टेज में हम ये समझा पाते हैं और वो खुद भी समझ पाते हैं दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, इफ द वेट इज द सेम, देन the both items will be equally heavier, and that is why conservation होता है। इसमें वेट नहीं होता, एरिया भी होता है, मास भी होती है, हाइट भी होती है, कि सेम रहेगी, हाइट भी सेम रहेगी। अगर कोई ग्लास जो है वो ऐसा है, ठीक है, इधर आई एम ड्राइंग, कोई ग्लास ऐसा है और कोई ग्लास ऐसा है और दोनों ही 1 लीटर के हैं, तो इसमें से कौन से जो है, मैं ये नहीं बता रही 1 लीटर है, ठीक है, मैं उनको बता रही हूँ कि ये जो दोनों ग्लास है इसमें, और ये एक ही इनका एक ही लीटर है, ठीक है, 1 2 छोड़ो, ये एक ही लीटर के हैं, ठीक है, इनका जो है कैपेसिटी एक ही है, तो कौन सा होगा जिसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो इस कंजर्वेशन रूल में वो समझाएगा, उस बच्चे को समझ आ जाएगा कि अगर मैं कुछ भी डालती हूँ और इनमें अगर कैपेसिटी एक ही है, जैसे वो एज्यूम कर ले कि 2 लीटर दोनों हैं, तो 2 लीटर है तो दोनों में तो 2 लीटर ही आएगा ना, चाहे वो ब्रॉड हो, चाहे वो लंबा हो दिखने में, वो वाइड हो, वो लंबा हो, ठीक है, वो लीन हो, पतला और लंबा हो, ये मोटा और छोटा हो, ठीक है। बट इट डजेंट मैटर क्योंकि इवन इफ अ ग्लास इज ब्रॉड एंड शॉर्ट, एंड इवन इफ द
द अदर ग्लास इज थिन एंड लॉन्ग, ठीक है, तो अगर उनका वेट सेम है, 2 लीटर है, उसने एज्यूम कर लिया 2 लीटर है, तो वो एक ही होगा ना, ठीक है, कैपेसिटी तो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी तो एक ही होगी, ठीक है, बेशक शेप चेंज हो रही है, आई नो द शेप इज चेंजिंग बट इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। सो हेयर वी आर टीचिंग देम कंजर्वेशन कि कुछ भी हो जाए वेट मास सेम ही रहता है। अगर अपीयरेंस चेंज हो रही है, बाहर की अपीयरेंस चेंज हो रही है, जैसे एग्जाम्पल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कैपेसिटी पानी होल्ड करने की चेंज हो जाएगी। अगर 2 लीटर है दोनों की तो 2 लीटर ही रहेगी। दैट इज समथिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। तो ये आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशन में कंजर्वेशन आता है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर्मल ऑपरेशन में आपका 11 से 15 होता है, 11 से 15 होता है, सॉरी 11 से 15। नाउ यू आर अ टीनेजर, यू एंटर इनटू प्यूबर्टी, ठीक है, इस एज में प्यूबर्टी आपको हिट हो जाती है, प्यूबर्टी एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को भी सोचना शुरू कर देते हो। इस स्टेज में आपकी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी होगी, उसे भी आप सोचना शुरू कर दोगे। आप लॉजिकल सोचते हो, यू थिंक लॉजिकल, ओके, यू थिंक वेरी लॉजिकल। यू क्वेश्चन वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स। और इसी स्टेज में आप टीनेजर्स को देखते हो, वो पोज करते कि नहीं मम्मी हम ऐसे क्यों करते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं करते, हम पीरियड्स के बारे में ओपनली बात क्यों नहीं करते हमारी कंट्री में। तो ये सारे टीनेजर्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम in this formal operational start questioning everything, start questioning the norms, start questioning the values, start questioning the ideas. They oppose the ideas, they just don't question it, they challenge the ideas. They ask their parents कि ऐसा क्यों होता है, why do you have to suffer. Moms को बोलते हैं, when I was a kid and I was in formal operational, I was not a kid, I was a teenager, I used to question my mom about the social norms, that why only women are suffer, why only women suffer, right, why only women have restrictions, right. I always used to ask these questions to my mom, because at this stage I started questioning everything, and that is your sensory motor and pre-operational, concrete and formal. And this is where you have to understand कि आप पहले एक स्टेज पे आओगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर फोर्थ पे, and that is given by जीन पे। आज है, अब मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी एंड कर दूंगी, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू मेक अनदर वीडियो एंड आई वांट टू अपलोड इट। टाइम लगता है अपलोड करने में, इसलिए आई विल टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड देन आई विल एंड द वीडियो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। लेट्स टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ object permanence. Stages of object permanence. Let's talk about it. Object permanence stages. करे बात stages की, करते हैं, आ जाओ। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है। कुछ चीज़ अगर आ गई तो बच्चों को लगेगा कि वही तभी एग्जिस्ट करता है, अगर कोई चीज़ वहाँ से नहीं है तो उसको लगेगा कि इस कॉर्नर में नहीं पड़ी, ये चीज़ गायब हो चुकी है। धीरे धीरे सेंसरी मोटर में उससे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, और उससे पता लगता है कि अगर मेरी चीज़ को मेरे सामने नहीं है, इट स्टिल एग्जिस्ट। इजी टू अंडरस्टैंड। देयर आर टोटल 4 stages. No, sorry. Total there are 6 stages. 6 stages. Stage 1. Stage 1 tracks, ignores. Happens in 0 to 1 month. 0 to 1 month तो बेबी बिल्कुल न्यू होता है, बहुत स्मॉल सा बेबी होता है, तो उससे लगता है कि अगर मैं कुछ बेबी को टॉय दिखा रही हूँ तो वो देखेगा, इग्नोर कर देगा, उसे नहीं मिलेगा, वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता। If I'm showing this is a toy, I'm showing this to a baby
इन द स्टेज 1 ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस फ्रॉम 0 to 1 month, उससे लगेगा गायब है तो गायब है, डज नॉट एग्जिस्ट. दैट इज अ स्टेज 1. स्टेज टू इज लुक्स वेयर. अब स्टेज टू में कोई चीज़ डिसअपियर हो गई तो वो देखने की कोशिश करता है कि ओके दिस पेन इज हिडन, वेयर इट इज हिडन, what is the place, where is it hidden, what is the place, मे बी ये कहीं हो, मे बी ये बेड के आसपास हो, तो वो कोशिश करता है ढूंढने की. The baby tries to look for the object. ठीक है. This is your stage 2 from 1 to 4 months. 1 to 4 months. Now stage 3. Now stage 3 is search partially. अब कोई चीज़ें पार्शली हिडन होंगी ना, उसे भी सर्च करने की वो कोशिश करेगा. ठीक है. वो होगी आपके 4 से 8 या आपके 4 से 8 मंथ्स के बीच में होगा. ये स्टेजेस कैन बी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इन द होल लाइफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर, बट आई एम सेइंग कि ये आ सकते हैं. एक बार यू हैव टू स्टडी इट, राइट. एक बार आप इसको देख लो बिकॉज दीज कैन बी इंपॉर्टेंट. सर्च ऑब्जेक्ट दैट डिसअपियर्ड. लास्ट प्लेस पे डिसअपियर हो गया. अब जैसे ये पेन पहले इधर पड़ा था, ठीक है. अब मैंने बेबी की नज़रों से हटा के आई रिमूव दिस पेन फ्रॉम हिज आईज एंड आई केप्ट दिस पेन हियर. ये पेन को मैंने इधर रख लिया. ठीक है. तो मैंने बेबी को बताया कि पहले पेन इधर था, उसने इधर देख लिया. अब वो है ही नहीं. बेबी कम्स टू दिस प्लेस एंड वो पेन को देखता है, पेन नहीं मिलता है, वो फिर दूसरी जगह जाता है, फिर उसको पेन नहीं मिलता. ठीक है. पर वो वापस उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसे पता है कि लास्ट टाइम मैंने इसको इधर दिखा था. इन शॉर्ट बेबी पहले क्या करता है, फर्स्ट ये जगह होती है पेन की, फिर दूसरी जगह ये होती है. ठीक है. आपको 2 दिख रहे होंगे प्लेसेस. तो फर्स्ट प्लेस ये होती है और सेकंड प्लेस ये होती है. बेबी को लगता है कि पेन तो दिखा था यहाँ पे, अब यहाँ पे नहीं है, तो वो कहीं और भी सर्च करेगा. बट पहले वो सर्च कहाँ करेगा, जहाँ पे लास्ट पेन था, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लास्ट था वो उसको देखेगा. मे बी वो बेड के पास कुछ रखा था, फिर वो नहीं है, तो बेबी बेड के पास जाके सर्च करेगा. दिस इज योर स्टेज 4. इट विल लुक फॉर द ऑब्जेक्ट दैट वाज देयर. ठीक है. द लास्ट टाइम. सो ऑब्जेक्ट जो लास्ट टाइम में था, लास्ट प्लेस पे था, उसी पे जाके वो देखेगा. दिस इज स्टेज 4. स्टेज 5 follows series of visible. तो अब वो क्या करता है, अब वो ना उसको पता लग जाता है, इधर ना डेवलप हो जाता है. ये आपका होता है 12 से 18. और स्टेज 6 में क्या होता है, फुली डेवलप्ड. स्टेज 6 में फुली डेवलप्ड हो जाता है. ओके. और स्टेज 5 को हम बोलते हैं मेंटल सॉल्यूशन, बिकॉज उसे अपनी लाइफ का सॉल्यूशन मिल जाता है, उसे ये पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेंटल सॉल्यूशन फ्रॉम 18 to 24. Easy to understand. Stage 5 is called this. This is your stage 5. Okay. Stage 4 is called purposeful coordination. आपको याद रखना है. ठीक है. क्योंकि इधर आप कोऑर्डिनेट कर जाते हो. ठीक है. आपको कोऑर्डिनेशन पता लग जाता है. लास्ट टाइम इधर था तो इधर ही देखना है. तो कोऑर्डिनेशन, पर्पसफुल कोऑर्डिनेशन. ठीक है. स्टेज 1 को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स होते हैं उसके. ठीक है. रिफ्लेक्स. एंड स्टेज 2 इज कॉल्ड इसमें रिफ्लेक्स होता है, इसको बोलते हैं, स्टेज का नाम है पर्पसफुल कोऑर्डिनेशन. इसमें वो पर्पसफुल कोऑर्डिनेशन हो जाता है आपका स्टेज, आपका स्टेज 4 में. स्टेज 1 में रिफ्लेक्स होता है. ठीक है. उसमें ये चीज़ें होती है. स्टेज 2 को हम बोलते हैं प्राइमरी. इसका नाम है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन. दिस इज अ स्टेज 1. स्टेज 3 को हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन. ठीक है.
4 to 8 months. दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए हमने पढ़ लिया। अब आएगा एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इनका रिफ्लेक्स होता है, इसमें आपका पर्पसफुल कोऑर्डिनेशन होता है, इसको हम टेरिटरी बोलते हैं, टेरिशरी जो भी बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है। आपका ये स्टेज 3 सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है। कौन सा होता है स्टेज 3? पार्शली जो हिडन होता है उसको आप देखते हो। और आपका सेकेंड क्या होता है? लुक्स वेयर इट डिसअपियर्ड, कहाँ पे वो डिसअपियर्ड है वो देखता है, उसको डिसअपियरेंस को पता लग जाता है कि अब डिसअपियर हो गया, वो फिर इसको थोड़ा थोड़ा ढूंढने की कोशिश करता है। दिस इज स्टेज 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज इट। ये आपको एग्जाम में आएगा, तो इसी को थोड़ा बहुत आपको समझ लेना। 80% भी समझ आ गया, इट इज़ इनफ। यू कैन गिव आंसर्स, यू कैन गिव आंसर्स एंड आई होप you have understood everything. And that's it for now. Thank you for watching this video. We'll make another video soon.